Hi everyone, myself Akash. This is week 4 of my AI/ML learning journey. Today is Sunday, so today I had not studied any topic. I just revised my whole things that I study till now. So if I talk about this week, in this week I learned three things. First of all, I complete pandas library, and second I revise NumPy, and third I make a project on Python that use Google Gemini API to uh, to connect model in my Python library. Basically it is a AI chatbot that use Google Gemini API to communicate. So, so, this week I cover Panda and NumPy. Basically I complete Panda topic wise everything that importance, and then I revise my NumPy I study last week. So both I revision and then I make one project that related to Python AI chatbot जो कि गूगल जेमिनी का एपीआई यूज करता है मॉडल को कम्युनिकेट करने के लिए. So this is I do this week. If I talk about Panda, so if I talk about Panda, so Panda is one of the Python libraries that is used for data analysis and manipulation. So in Panda we have two data structure. First one is series and second one is data frame. सीरीज जो कि वन डायमेंशनल होता है, डेटा फ्रेम जो कि मल्टी डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल होते हैं जो कि टेबल के फॉर्म में होते हैं. So in data frame I learn data frame method, like the df.head, tail, sample, info, describe. This all related to data frame method. It help to know how data what is data and how data appears. This is the basic things where df.describe tells our basic statics जो कि मेन मीडियन मोड क्या है, मैक्सिमम मिनिमम क्या है. df.shape जो कि शेप बताता है डेटा कैसा शेप में है, कितना रो है कितना कॉलम है. df.column कितने कॉलम है उस डेटा में, डेटा सेट्स में. एंड df.data टाइप जो कि वो जो डेटा है किस टाइप का डेटा है, फ्लोट है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है. Then I learn about how to select data, how to filter data. Then after that I learn data cleaning, how to, if data is messy and raw data we have to clean first, so how to handle missing value. Then I learn about how to transform data. Then I learn about grouping and aggregation. After that I learn about मर्ज, हाउ टू, अगर दो टेबल है, दो डेटा सेट्स है, उसको हम मर्ज करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल थिंग्स आई लर्न इन pandas. And so this is my panda file that I study pandas library for AI/ML. So this is my first file where I know how to make data frame. Then I learn about series data. What is series data? So series data क्या होता है, जो कि जिसमें एक ही कॉलम हो. देन आई लर्न अबाउट डेटा फ्रेम, जो कि डेटा फ्रेम क्या होता है जिसमें मल्टीपल कॉलम हो. उनको कैसे बनाते हैं, डिक्शनरी की मदद से, फिर लिस्ट की मदद से. फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन लिस्ट की मदद से कैसे बनाते हैं, फिर नंपाई एरे की मदद से कैसे बनाते हैं, फिर डिक्शनरी की मदद से कैसे बनाते हैं. तो दैट आई लर्न. और कोई भी डेटा फ्रेम को एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना है पैंडाज में, तो हम ये ऐसे कर सकते हैं. देन आई लर्न अबाउट डेटा फ्रेम मेथड, जो कि हेड, टेल, बेसिक डेटा फ्रेम मेथड है जो पढ़ा है. आफ्टर दैट
और एक in this file I download data from Kaggle and do some basic data frame method technique. So then how to select an index, कोई भी डेटा में किसी भी selection this, and after that I learn about how to filter the method. किसी भी डेटा सेट में हमको फिल्टर करना हो, जैसे इस डेटा सेट में हमको AQI जिसका जिस सिटी का AQI 100 से ऊपर है उसको हमको उस वही डेटा सेट चाहिए, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं. Thereafter I learn about data cleaning. Data cleaning में first of all I learn about handle missing value की डेटा सेट में अगर वैल्यू मिसिंग है तो हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं. Then I learn about अगर उस डेटा सेट डुप्लीकेट है, एक ही डेटा बार बार है, तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं. Thereafter I learn about string. So डेटा स्ट्रिंग में है तो डेटा क्लीन कैसे कर सकते हैं. So this is the, after that I learn about data transformation. So this is very, I think, the hardest tough topic for me. This data transformation take lot of time to understand me. So in data first of all I learn about apply method, फिर map, फिर assign. कोई भी नया रो नया कॉलम लेना हो तो हम assign की मदद से ले सकते हैं. रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी डेटा वैल्यू को हमको रिप्लेस करना हो तो रीनेम. तो यही सब है. आफ्टर दैट सॉर्ट, की किसी भी डेटा फ्रेम को हमको सॉर्ट, किसी भी कॉलम को मुझे सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे सैलरी है तो मुझे सैलरी मिनिमम से मैक्सिमम में चाहिए, तो हम वैसे भी कर सकते हैं. Learn about grouping and aggregation. So grouping क्या होता है, कोई भी सिमिलर डेटा फ्रेम को एक साथ रखना, उससे ग्रुपिंग. जैसे इसमें कंट्री क्या है, यूएसए है, यूएसए, कनाडा, स्पेन, चाइना, इंडिया, यूएसए. सो सारे यूएसए, जितने भी यूएसए है, जिस डेटा कंट्री जितने भी कंट्री यूएसए है उसका अलग बना देगा ग्रुप. जितना भी इंडिया है उसके अलग बना देंगे, जितने भी चाइना है उनके अलग बना देंगे. तो यही ग्रुपिंग है. ग्रुपिंग में ही एग्रीगेशन फंक्शन बना कि उस पर्टिकुलर कॉलम का हमको मीन मीडियन मोड मैक्सिमम जो भी निकालना हो हम निकाल सकते हैं. Then you will learn about basic visualization, जो कि हम आगे पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में. उसमें हम अच्छे से एडवांस जो कि हम विजुअलाइज करते हैं, बट इसमें बेसिक एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं पैंटास में भी. सो दिस इज. Thereafter I learn about merge join. So merge join क्या होता है, दो टेबल है हमारे पास, उनको दोनों को हमको मर्ज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं. So this is मर्ज. यहाँ पे मैंने देखा ज्वाइन में, जो कि 4 टाइप के ज्वाइन होते हैं, इनर, लेफ्ट, राइट एंड आउटर. So this is all. After that I learn about, and after that I do assignment question. So this is the assignment question. I just do the second assignment question is this is the second assignment question, जो कि मुझे Kaggle से डेटा से डाउनलोड करना था, आइरिस डेटा, और उस पे पर्टिकुलर उस पे ही सारा असाइनमेंट का काम करना था. तो दिस इज ऑल. आफ्टर दिस इज द थर्ड असाइनमेंट क्वेश्चन. सो दैट्स ऑल. और ये तो हुआ पैंडल्स, और एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया था. सो आई सॉ माय प्रोजेक्ट पाइथन. So this week I make this project in Python, जो कि Python AI chatbot है using Google Gemini API. So what is this project? So this chatbot can
talk with user, remember the conversation, and save all the history to a file, just like simple version of ChatGPT. But in this, I I take Google API from Google AI Studio. So API में ही जितने जितने मॉडल है, API की मदद से ही मैंने मॉडल को अपने लोकल फाइल में इंटीग्रेट किया है तो कि मैं टॉक कर सकूं। तो बेसिकली ये इस कैसे क्या क्या हुआ इस प्रोजेक्ट में। आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्रिएट एपीआई, जो कि एपीआई मैंने गूगल एआई स्टूडियो से लिया है। आप भी ले सकते हैं जाके, बेसिक है। सो देयर आफ्टर ये जो मॉडल है, जो भी मैंने एपीआई लिया उसमें जितने भी मॉडल प्रेजेंट है उसमें से वो उस मॉडल को सेलेक्ट करता है जो कि टेक्स्ट जनरेट करता है। तो जितने भी मॉडल है उसमें से वो मॉडल सेलेक्ट हो जाएगा, टेक्स्ट जनरेट करता है, तो उसमें से हम कोई एक मॉडल चूज कर लेंगे। तो हियर आई चूज मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। सो ये क्या है, मॉडल जनरेट करता है। तो जो भी हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट में वो यही मॉडल जवाब देगा जो भी कन्वर्सेशन होगा। सो हियर आई इनिशियलाइज द मॉडल, जो कि मैंने यहाँ पे मॉडल को इनिशियलाइज कर दिया है। और यहाँ पे मेन जो चैट होगा यहाँ पे, जो भी यूजर मैसेज देगा, जैसे मैं ही जो भी मैसेज करूँगा वो क्या होगा, मेरा अगर मैं कुछ भी मैसेज किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होगा, वो एक चैट सेशन बनेगा। उसमें चेक होगा कि अगर वो चैट पहले से स्टार्ट है तो यहाँ सीधे नहीं, अगर वो चैट पहले से स्टार्ट नहीं है तो क्या करेगा, वो चैट एक मॉडल स्टार्ट कर देगा पहले से, जो कि फर्स्ट मैसेज होगा। तो अगर वो चैट पहले से स्टार्ट चल रहा है तो ये वाला नहीं चलेगा, इधर आ जाएगा, जो कि जो भी हम मैसेज किए हैं वो एक डिक्शनरी फॉर्म में सेव हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे हिस्ट्री भी स्टोर करना है। तो उस सेशन का जितना भी हिस्ट्री होगा यूजर का और मॉडल का, ज़्यादा हिस्ट्री स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने एक चैट हिस्ट्री स्टोर करने के लिए एक डिक्शनरी बना दिया है, जिसमें इसमें मॉडल का इसमें फर्स्ट यूजर का कंटेंट जो भी बोला है वो स्टोर होगा। ऐसे ही सेम मैंने कंटेंट जेमिनी का भी बना दिया है, जो कि मॉडल जो जो जवाब देगा वो भी स्टोर कर सकता है। So basically and is the main function where I call the where I so call the प्रोजेक्ट। सो स्टार्ट करता हूँ मैं इस प्रोजेक्ट को, देखते हैं क्या होता है। Take little bit time, so please patience। रन हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ अवेलेबल मॉडल फॉर गूगल एपीआई। तो जो भी मैंने एपीआई दिया था उसमें जितने भी अवेलेबल मॉडल हैं ये जस्ट प्रिंट। और ये सपोर्ट जनरेट कंटेंट मीन्स ये मॉडल टेक्स्ट जनरेट करता है, और जो मॉडल टेक्स्ट जनरेट नहीं करता उसमें आएगा डज नॉट सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे है, ये मॉडल में डज नॉट सपोर्ट जनरेट कंटेंट। सो इसमें हम जनरेट कंटेंट नहीं कर टेक्स्ट जनरेट नहीं करता है, तो हम इसको नहीं लेंगे। सो आउट ऑफ ऑल आई जस्ट सेलेक्ट मॉडल जेमिनी 2.5.flash। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे इनिशियलाइज मॉडल इनिशियलाइज हो गया ये मॉडल, और ये एक चैट सेशन बन गया जिसमें पाइथन न्यू चैट सेशन बन गया जिसमें पाइथन है। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ हाय माई सेल्फ आकाश। So then I write what is API in short।
just give me answer. API application program interface. So just briefly describe me what that I ask. Then I write thanks. देन और ये जो मॉडल है हिस्ट्री भी रखता है। जैसे मैंने शुरू में अपना नाम बताया था, अब मैं इससे अपना नाम पूछता हूँ, व्हाट इज माय नेम। सो बोला योर नेम इज आकाश, तो जो कि मैंने पहले बताया था। तो और अगर अब मैं एग्जिट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जिट किया तो एक चैट हिस्ट्री बोल दिया, गुड बाय, इट वाज प्लेजर टू असिस्ट यू। सो यहाँ पे एक चैट हिस्ट्री भी बन जाएगा, जो भी मैंने कन्वर्सेशन किया है यहाँ पे चैट हिस्ट्री बन जाएगा। सो हियर, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम आ गया। यहाँ पे मैंने बोला था है मैसेज आकाश, जिमिनी का भी रिस्पॉन्स आ गया। फिर मैं पूछा व्हाट इज एपीआई इन शॉर्ट, तो उसका रिस्पॉन्स आ गया ये। फिर मैंने बोला कि थैंक्स, फिर उसका रिप्लाई, फिर मैंने क्या बोला, व्हाट इज माय नेम। So this is also stored history. So this is the project I do in this week. All for this week. Now from tomorrow, week 5. From week 5, I will go more deeper in AI ML learning journey, where next topic I think I have to learn about Matplotlib. Yeah, so also I have to learn about math for AI after that. So this week I am learning Matplotlib. So that's all. And also today is revision date, so also I revise my all things that I study from till now. So today I revise oops, numpy and pandas. So that's all for this week. See you next week. Till now, stay consistent. Bye.